हेलो गाइस, वेलकम पाल कॉमर्स विद साइंस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। लेक्चर 7 यूनिट 7 एम कॉम पेपर कोड है M.Com इग्नू, पेपर कोड है 023। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दे यूनिट टाइम इज रेडी टू स्टार्ट। माई सेल्फ महिपाल बघेल एज ए मेंटर एंड कोचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है? बिजनेस में एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसे हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी 3 टाइप्स होती हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। Business level strategy are the set of certain moves and action which are taken with aim to provide value to customer, thereby developing competitive advantages. Organizations get competitive advantage by using the core competency of organization. Such strategy usually occur in the organizations having multiple business, where each business is considered strategic business unit SBU होते क्या हैं? These strategy are action specifically selected for each SBU. The business level strategy addressing following issue: satisfying the customer need को satisfy करना, achieving the edge over its competitor का advantage लेना, avoidance of competitive disadvantage. चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ। रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ क्या होता है? रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ cost play an important role in the survival and growth of business organizations. For survival, business organization must make some profit so that it can sustain its operation on a long-term basis, fulfillment its other obligation. Before business starts operating, it has incurred certain initial cost of acquiring assets such as land, building, plant and equipment. These assets have installed and commissioned. Then the raw material are paid for, feed into the machine so that finished goods can be produced. चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। ये होता क्या है? Let's understand the concept through some example. A large manufacturing organization is entering only into the largest product segment. A FMCG organization has used the relative cost advantage 3 area: production, distribution, promotions. A cycle manufacturing organization dropped in the relevant product attributes and by subcontracting the production of parts, small units, achieving the cost advantage which help the company processing their product very competitive advantage. चलिए अब इसके बाद क्या है? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप ये होता है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। द ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, जिसने कि कॉस्ट में लीडरशिप कर रखी है, जिसकी कॉस्ट कम बैठती है, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कम लगती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन दिस हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आर ऑलवेज ऑन द मूव बिकम सक्सेसफुल। यानी कि सेलिंग प्राइस सेम होता है, जो हमारी यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होगी तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। टू स्ट्राइव इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एज ओवर द कॉम्पिटिटर। यदि जिस किसी की ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप होगी तो उसे कॉम्पिटिटर एडवांटेज मिल सकता है। टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
कंपिटेटिव एडवांटेज का एडवांटेज मिल सकता है। The organization should produce goods quality products at minimum cost. This means that organization should provide high quality at low cost so that customer gets best value for the product he or she is buying. Therefore, it becomes necessary for organizations to have strategy edge towards its competitors. One such general strategy is overall cost leadership with aims at delivering product and service at low cost relative to its competitors as same to maintain the quality according to Porter बाबा की इच्छा। According to Porter, the following the prerequisite of cost leadership. Cost leadership है क्या? According to Porter, ये aggressive construction of efficient scale facility. Second, vigorous pursuit of cost reduction from experience. Tight cost overhead control, avoidance of margin customer accounts and cost minimized. चलिए आगे बढ़ते हैं। According to Porter, cost leadership perhaps is clearest of the three generic और Venus level strategy। थ्री जेनरिक Venus level से जो स्ट्रेटजी होती है, cost leadership, differentiation, focus. To sustain the cost leadership throughout, the organization must be clear about its accomplishment through the different elements of the value of chain. Three generic strategy and their interrelationship as given by the Porter. थ्री जनरल स्ट्रेटजी, थ्री होते हैं, ये होते हैं इंडस्ट्री वाइड और सेगमेंट ओनली। इंडस्ट्री वाइड का मतलब ब्रॉड, BROAD, जैसे जियो की सिम वो सभी के लिए है, भले अमीर हो गरीब हो लो एवरेज हो, सभी के लिए है, सभी के लिए सेम प्राइस है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। और स्पेसिफिक सेगमेंट, इसका मतलब है नैरो, NARROW। यदि ब्रॉड में भी डिफ्रेंसिएशन होता है और ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप होती है, और नैरो में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन कॉस्ट ऑन डिफ्रेंसिएशन और कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट ऑन फोकस, यानी कि फोकस और डिफ्रेंसिएशन। चलिए, थ्री जनरल स्ट्रेटजी होती है क्या, डिफ्रेंसिएशन, कॉस्ट एंड फोकस। चलिए डिफ्रेंसिएशन पहला क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ लीडरशिप। उसमें क्या हमारी कॉस्ट कम बैठती है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम हो जाती है, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो जाता है, हमें इसका कम्पिटिटिव एडवांटेज एज मिल जाता है, मतलब कम्पिटिटिव फ़ायदा मिल जाता है। सेकंड क्या है हमारा डिफ्रेंसिएशन, एवरी इंडिविजुअल कस्टमर इज यूनिक इन इटसेल्फ, सो हिज हर प्रेफरेंस रिगार्डिंग द टेस्ट प्रेफरेंस एटीट्यूड, यानी टेस्ट प्रेफरेंस में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। दी नीड्स of customer fulfilled by the organizations by producing differentiation products. In our day-to-day life, we see many such example differentiation product। यानी थ्री जनरल स्ट्रेटजी हमारी क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होती है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम बैठती है, जिससे हमें कम्पिटेटिव एडवांटेज होता है। जिसका मार्केट में कॉस्ट पर यूनिट कम बैठती हो तो उसे वो सस्ते रेट में बेच सकता है, उस सेम प्रोडक्ट को, तो उसे कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक ए बिस्किट, सॉफ्ट, टूथपेस्ट, ऑयल, सम come under the category of differential product to satisfy the diversified needs of the customer. It becomes essential for the organizations to adopt a differentiation strategy. To make this strategy successful, it is necessary for the organization to do extensive research to study different needs of the customers and organizations
An organization is able to differentiate from its competitors if it is able to position itself uniquely at something that valuable to buyer. Differentiation can be lead to different disadvantage in which organizations get premium in the market, which is more than cost of providing differentiation. The extent to which differentiation occurs depends on the overall strategy of organizations. Previously, differentiation was viewed narrowly by the organizations, but in the present scenario, this becomes one of the essential competitive organization strategy. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, टू टाइप्स होते हैं डिफरेंशिएशन के। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक टाइप्स, टेंजिबल डिफरेंशिएशन और इंटेंजिबल डिफरेंशिएशन। टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। एट द नेम सजेस्ट टेंजिबल मीन्स समथिंग। टेंजिबल का मतलब क्या है, समथिंग विच इज रियल, जो कि वास्तविक में रखता है, वास्तविक है। एंड कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, उसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं। वेयर एज इंटेंजिबल मीन्स इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है, वेयर इंटेंजिबल मीन्स समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी टच, जिसको हम छू नहीं सकते। इट कैन जस्ट बी फेल्ट, जिसको महसूस कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटेंजिबल एस्पेक्ट। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ टाइम वाइल डिस्कसिंग डिफरेंशिएशन वी एक्चुअली डिस्कस द टेंजिबल डिफरेंशिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग यूनिक विद द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी परचेज। एक्टिविटी में क्या है, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चर, परचेज, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस। तो डिफरेंस अपॉर्चुनिटी में क्या है, परचेजिंग। परचेज में हम क्या डिफरेंशिएशन होगा, परचेज में क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स और मटेरियल रिक्वायर्ड। डिजाइन में क्या होगा, एस्थेटिक अपील टू रोबस्टिक परफॉर्मेंस, इजी ऑफ मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मिनिमाइज द डिफेक्ट्स। डिलीवरी में डिफरेंस अपॉर्चुनिटी क्या होगी, स्पीड इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर, रिलायबिलिटी इन मीटिंग द प्रोमाइजिंग डिलीवरी आइटम। ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस अपॉर्चुनिटी क्या होगी, इम्प्रूविंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग इंक्रीज। मैनेजमेंट क्या, कस्टमर सर्विस कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में क्या होगा, परमिट रेस्पॉन्सिवनेस टू नीड्स टू स्पेसिफिक कस्टमर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केटिंग में डिफरेंस अपॉर्चुनिटी क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी रेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग। कस्टमर सर्विस में डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोवाइडिंग प्री सेल्स इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, यानी कस्टमर को सेल्स होने से पहले उसे प्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, डिफरेंशिएशन होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग यूनिट्स विद ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस क्या होता है, परचेजिंग में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स मटेरियल एक्वायर्ड। डिजाइन में क्या होगा, अटेस्टिंग अपील टू रोबस्टिक ऑफ परफॉर्मेंस, इजी ऑफ मेंटेनेंस। मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमाइज टू डिफेक्ट्स। डिलीवरी में क्या होगा, स्पीड इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर, रिलायबिलिटी इन मीटिंग द प्रोमाइज डिलीवरी आइटम। ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स में इम्प्रूव ट्रेनिंग, मोटिवेशन, इंक्रीजिंग कस्टमर सर्विस कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, परमिट रेस्पॉन्सिव टू नीड स्पेसिफिक कस्टमर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंशिएशन क्या होगा, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मार्केटिंग में डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्डिंग ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी रेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजिंग। कस्टमर सर्विस में डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोवाइडिंग प्री सेल्स इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर, यानी सेल्स होने से पहले उसको कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टेंजिबल, इंटेंजिबल, कंपोनेंट डिफरेंशिएशन। तो टेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल क्या हो सकता है, जैसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। टेंजिबल क्या हो सकता है, डिजाइन, जो डिजाइन उसको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। पैकेजिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। स्टाइल, क्वालिटी। इंटेंजिबल क्या होगा, इमेज, ब्रांड, कंपनी रेपुटेशन, कस्टमर परफॉर्मेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कॉस्ट क्या होती है। डिफरेंशिएशन यूजुअली कॉस्टली होती है, क्योंकि प्रोडक्ट यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। इस वजह से उनकी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्टली होती है। द डिफरेंशिएशन एड्स कॉस्ट एज इट इन्वॉल्व्स added feature to cater the needs of customers. Usually the cost is incurred in the following case. भाई फॉलोइंग को केस में क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। तो इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, इंक्रीज एडवर्टाइजिंग स्पीड टू प्रमोट द प्रोडक्ट, cost of hiring highly skilled sales force, use of more expensive material to improve the quality of product etc. चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिफरेंशिएशन। मैं डिफरेंशिएशन के फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन होते क्या, डिफरेंशिएशन यूनिक होता है, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, साइज में, शेप में, उनको डिफरेंशिएशन किया जाता है दूसरे के प्रोडक्ट से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन किया जाता है। कॉपी नहीं किया था, उसको थोड़ा डिफरेंशिएशन किया जाता है। चलिए हम समझते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिफरेंशिएशन के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। एवरीथिंग इज एक्कम्पनीड बाय एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सो इज डिफरेंशिएशन। Let us first discuss advantage of differentiation followed by its disadvantage. Advantage होते क्या हैं, प्रीमियम प्राइस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, increase in number of units sold. Third, increase in brand loyalty by the customer, sustaining competitive advantage. एडवांटेज होते क्या हैं, प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इंक्रीज इन ब्रांड लॉयल्टी बाय द कस्टमर और सस्टेनिंग competitive एडवांटेज। एडवांटेज हमारे होते हैं प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इंक्रीज इन ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, सस्टेनिंग कंपेटिटिव एडवांटेज। वन बाय वन इनको समझते हैं। प्रीमियम प्राइस फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, when the organization is able to exploit all resources of differentiation that are less costly or not costly, then the organizations can be differentiated from its rival organizations. राइवल क्या होती हैं, राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, राइवल हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो किसी भी हद पर जा सकती हैं किसी कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी भी हद तक। यानी कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है बिजनेस में सेट करना, बिजनेस को अपने चलाना। वो किसी को, जो राइवल्स होती हैं उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी नया बंदा आए और बिजनेस करे, उनका शेयर मार्केट से ले जाए, उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। जैसे जियो देख लो, जियो ने तो बहुत सारी कंपनियां बंद करवा दी उसने, जियो ने। देयर कैन बी मैनी एग्जाम्पल लाइक चेंजिंग इन मिक्स प्रोडक्ट फीचर्स देन द एडिंग मोर फीचर्स विच आर लेस कॉस्टली बट डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट गिविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
द प्राइस प्रीमियम टू ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सेकंड क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इफ द प्रोडक्ट इज यूनिक देन डिमांड इट्स इंक्रीज, हैंस फॉर द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ए वेरी गुड एग्जाम्पल इज ऑफ नूडल्स कंपनी which has competition from the weak company but is still considered to be different from its rival. Hence, here the number of customers is won by smart differentiation strategy, thereby increasing the number of units sold. Second में क्या कहते हैं, increase in brand loyalty by the customer. A well-positioned and differentiation products gain the brand loyalty of the customer. For example, large coffee brand has developed a brand loyalty amongst the coffee lovers. Firstly, it came the powered from what it is differentiation itself coming in granular from, then it is moved to decaf version and the pre-mixed different flavor maintaining the quality. Once the experience the brand loyalty and customer loyalty for particular brand is developed, sustaining the competitive advantage last but not least. This is the crux of the differentiation. This can be achieved optimizing cost, increasing the profit. यानी sustaining competitive advantage. तो हमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसे कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। ये क्या है, ये हमारा क्रक्स है डिफ्रेंशिएशन का। This can be achieved by optimizing cost and increasing profits. It is the more often the known as low-cost differentiation strategy. It is combination of all three advantages discussed above. जो अभी हमने 3 डिस्कस करे, जो सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ये क्रैक्स है। जो 3 है वो क्या है, एडवांटेज क्या होते हैं, प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। प्रीमियम यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे एप्पल का फ़ोन। तो एप्पल जो प्राइस चार्ज करना चाहे वो चार्ज कर सकता है क्योंकि उस पर डिफ्रेंशिएशन है, यूनिक है। जो वायर है वो नहीं सोचता ये महंगा है सस्ता है, वो खरीद लेता है, उसे पसंद आया वो खरीद लेता है। क्योंकि क्यों खरीद लेता है, क्योंकि मार्केट में उसको अवेलेबल नहीं है। तो जो उसके प्रीमियम, जो उसके फीचर्स हैं वो डिफ्रेंशिएशन है। तो पहला एडवांटेज क्या है, प्रीमियम प्राइस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। जब एप्पल का फ़ोन जो कीमत है 20-25 हज़ार बैठती है, 1.5 लाख का बिकता है, तो बाकी सब प्रॉफिट है। सेकंड क्या आता है, इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट जितना बिकेंगे ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। और इंक्रीज इन थर्ड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा इंक्रीज नंबर यूनिट सोल्ड। थर्ड क्या है हमारा, इंक्रीज इन ब्रांड लॉयल्टी बाय कस्टमर, यानी कस्टमर ब्रांड पे भी ज़्यादा विश्वास करता है। एप्पल हर एक कोई पता है कि एप्पल बड़े महंगा फ़ोन बेचता है, उसकी ब्रांड लॉयल्टी बनी हुई है। तो ब्रांड पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं ना कि लोकल पर। फोर्थ क्या है हमारा, सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। जो अब ऊपर के जो 3 हैं इसका कॉम्बिनेशन है, यानी क्रैक्स है ये सस्टेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं डिसएडवांटेज किसके, डिफ्रेंशिएशन की। तो डिफ्रेंशिएशन के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। डिसएडवांटेज इसके डिफ्रेंशिएशन के, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन गोज फॉर डिफरेंट स्ट्रेटजी। जरूरी नहीं है कि हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन करे, डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करे। इट इज़ ए सक्सेसफुल एट टाइम, देयर आर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद इट। भाई इसके साथ कभी कोई डिसएडवांटेज भी आते हैं, डिफरेंस और डिसएडवांटेज भी आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज, कुछ मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज हैं, वो क्या है, ये 3 हैं। ये क्या कह रहा है, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट नॉट वैल्यूड
बाय बॉय। यदि यूनिकनेस प्रोडक्ट बॉय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो डिसएडवांटेज है। यानी कि एप्पल या कोई मोबाइल ऐसे फीचर लेके आता है जो बायर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो उस यूनिकनेस से क्या करेगा वो, बेस्ट है। सेकंड, एक्सेस अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन कंपनी लाती है उसके लिए हमें बायर को एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता है, ये भी डिसएडवांटेज है। जैसे कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है, जो कि 10 से 15 के बीच में कॉस्ट में है, और यही चीज़ एप्पल का फ़ोन 1.5 लाख का है मतलब, तो मैं एक्सेस फ़ायदा क्यों दूँ जब इसकी यूनिकनेस मेरे फ़ायदेमंद नहीं है और मैं उससे ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ, तो ये डिसएडवांटेज है भाई। जब मेरा काम 10, 12, 15 हज़ार में चल सकता है तो वहाँ मुझे 1.5 लाख रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है। एक्सेस अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारी क्या है, डिसएडवांटेज है। किसकी है, डिफरेंशिएशन की है। थर्ड हमारा क्या है, लॉस ड्यू टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लॉस भी हो सकता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट क्या है, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट नॉट वैल्यू टू बायर। यदि कोई यूनिकनेस प्रोडक्ट है, यूनिक है प्रोडक्ट, बायर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए यूज नहीं आ रहा, तो कोई डिफरेंस, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई स्टूडेंट है या कोई मतलब ओल्ड एज बंदा, उसको मैं एप्पल का फ़ोन दे दूँ तो उसे कॉलिंग करनी है बेसिक फ़ोन से, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। देयर आर नंबर ऑफ केस वेयर द डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट हैज़ नॉट गेन्ड इम्पोर्टेंस, वाई द कस्टमर्स हैंस फेल टू पोजिशन इटसेल्फ इन मार्केट। Uniqueness necessity does not lead to differentiation. More important is perception to buyer regarding particular product. जरूरी नहीं है कुछ विशेष जो प्रोडक्ट होते हैं। सेकंड है हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, समथिंग इज द केस ऑफ differentiation. If the organization able to understand the customer need and preference but goes on differentiation product, then the organization lost its market value. Unnecessary differentiation result in failure. थर्ड क्या है हमारा, लॉस। थर्ड है हमारा लॉस ड्यू टू डिफरेंशिएशन। थर्ड क्या है हमारा, लॉस ड्यू टू डिफरेंशिएशन। इन सर्टेन केस द ऑर्गेनाइजेशन while the differentiation does not realize the importance of coordinate activities in the value chain which result in high cost. Considering the fact differentiation always leads profitability is absolute nonsense. This result loss in to the organizations. चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस, हम पढ़ेंगे फोकस। जनरल स्टडी क्या होती है हमारी, डिफरेंशिएशन नहीं, कोस्ट डिफरेंशिएशन फोकस। अब हम पढ़ेंगे फोकस। फोकस क्या होता है, थर्ड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इज फोकस। फोकस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिजनेस स्ट्रेटजी एज इट इज सेगमेंट बेस्ड एंड हैज नैरो कॉम्पिटिटिव स्कोप. दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन of a market segment or a group segment in the industry and meeting the needs of that preferred segment or niche better than the other market competitors. This is also known as niche strategy. It focused strategy, the competitive advantage can be achieved. Optimized strategy, the target segment. Focus. फोकस स्ट्रेटजी हैज टू वेरिएंट दीज। फोकस स्ट्रेटजी के हमारे 2 वेरिएंट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, कॉस्ट फोकस, एंड सेकंड क्या होता है, डिफरेंशिएशन फोकस। जो फोकस स्ट्रेटजी है, फोकस यानी कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस, यानी कि यदि हम समझें कॉस्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। 2 मार्केट होती हैं, एक होती है हमारी नैरो, एक होती है हमारी ब्रॉड। नैरो मार्केट का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर मार्केट, यानी कि एप्पल का फ़ोन किसको टारगेट करता है, जो रिच पर्सनस है उनको टारगेट करता है। एप्पल कंपनी कहती है मेरा फ़ोन सभी के लिए नहीं है, मेरा फ़ोन उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जो हाई प्राइस में देना चाहते हैं और जो अच्छी क्वालिटी वाला फ़ोन यूज करना चाहते हैं, उसे हम नैरो मार्केट कहेंगे।
ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब है जियो। जियो का सिम वो सभी लोगों के लिए है, भले अमीर हो गरीब हो, सबके लिए सेम प्राइस है, सेम कॉस्ट है ब्रॉड। तो नैरो में क्या होता है, फोकस ऑन कॉस्ट, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, यानी कॉस्ट पर फोकस करेंगे, डिफरेंशिएशन पर फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट फोकस क्या होता है, कॉस्ट फोकस इज वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू कॉस्ट एडवांटेज इन द टारगेट सेगमेंट। यदि हम टारगेट सेगमेंट कर रहे हैं तो हम कॉस्ट एडवांटेज ले सकें, हम उसको कॉस्ट फोकस कहेंगे। डिफरेंशिएशन फोकस इन वेयर ऑर्गेनाइजेशन सीक्स डिफरेंशिएशन इन टारगेट सेगमेंट, जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का बेनिफिट ले सकें उसको हम टारगेट सेगमेंट कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल था आपको मैं समझा देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। लगभग चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है चैप्टर। चलिए लास्ट वाला मैं आपको समझाता हूँ, इधर समझा देता हूँ। ये कॉस्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पर हमारी दो मार्केट होती हैं। एक मार्केट होती है हमारी नैरो, ब्रॉड मान लो, ब्रॉड मार्केट, और सेकंड होती है हमारी नैरो मार्केट। तो ब्रॉड मार्केट क्या होती है, ब्रॉड मार्केट का मतलब होता है कि ब्रॉड मार्केट का मतलब है जियो की सिम सभी लोगों के लिए है। और नैरो मार्केट होता है एप्पल का फ़ोन, एप्पल की टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए है, जो अमीर लोग उन्हीं के लिए है। ब्रॉड मार्केट जियो सिम में भले ही शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, उसके लिए सेम प्राइस सेम सर्विस चार्ज की जाती है, उसे हम नैरो कहते हैं। ब्रॉड मार्केट में क्या होती है, हमारी जो कॉस्ट है वो कम रखनी पड़ती है। और नैरो मार्केट में क्या होते हैं हम, नैरो क्या होता है, फोकस ऑन कॉस्ट, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, यानी कि हम कॉस्ट पर फोकस करेंगे तो हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, डिफरेंशिएशन फोकस करेंगे उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। 1 बाय 1 इस चैप्टर में क्या है थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर इसको हम एंड कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ये चैप्टर हमारा यूनिट 7 था, हमारा यूनिट 7। 1 बाय 1 समझ लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन था, रोल ऑफ कॉस्ट इन बिजनेस ग्रोथ, यानी कि जो कॉस्ट होती है और बिजनेस ग्रोथ में क्या रोल होता है। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट एंड डिफरेंस फोकस। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप फोकस, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप होती है, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट कम बैठती है, जिसका मार्केट में एडवांटेज ले सकते हैं, कंपटीटिव एडवांटेज ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक टेक्नोलॉजी जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दूसरों से। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस्ट एंड फोकस। और कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट दूसरे से अपनी कॉस्ट कम करना, कॉस्ट डिफरेंशिएशन। एडवांटेज डिसएडवांटेज पर आता फोकस, बस यही चीज़ है। और एंड में और पढ़ लेते हैं भाई, 2 टाइप की मार्केट होती हैं, 2 टाइप की क्या होती है मार्केट। फर्स्ट होता है हमारी ब्रॉड मार्केट, सेकंड होती है हमारी नैरो मार्केट। ब्रॉड का मतलब है मैं पूरी इंडिया के लिए बना हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लिए बना हूँ। जियो की सिम कहती है मैं पूरे हिंदुस्तान में सेम रेट पर सभी लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, भले ही अमीर हो गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और नैरो मार्केट क्या कहती है, मैं कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टिकुलर बंदों के लिए बनाऊँ। जैसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ कुछ लोगों के लिए होती हैं, एप्पल का फ़ोन अमीर लोगों के लिए है, किसी की बस की नहीं है, हर एक कोई खरीद सके। तो ब्रॉड मार्केट में क्या बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो वहाँ पर हमें दोनों में क्या आता है हमारे कॉस्ट और डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन।
कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। तो कॉस्ट कम रखनी पड़ती है। जियो फ़ोन आया था, जियो की कंपनी, तो उसने क्या करा, शुरुआत में फ्री दिया तो काफ़ी सारे उसके कस्टमर या सिम होल्डर बन गए। फिर कुछ कंपनियां मतलब को झेल नहीं पाए तो इंडस्ट्री आउट होना पड़ा, जैसे रिलायंस, एयरसेल बंद हो गए। ये हमारा ब्रॉड मार्केट होती है जिसमें हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम बैठती है, और डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नैरो में क्या होता है, फोकस ऑन कॉस्ट, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन। फोकस ऑन डिफरेंस करेंगे तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, फोकस ऑन कॉस्ट कस्टमर को हम एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया एमकॉम, ये हमारा लेक्चर कितना था, 7 था। चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। यदि मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।